بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سو آج ہم بات کریں گے بریل لرننگ کی، اور انشاءاللہ یہ بریل کی کمپلیٹ اور کمپریہنسو فائنل ویڈیو ہوگی۔ اور ہم نے پارٹ 1 میں کچھ لائن 1 ڈسکس کی تھی، اور پارٹ 2 میں جو ہے ہم جو ہے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو پارٹ 1 پہ ہم ذرا سا تھوڑا سا رپیٹ کر لیتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس یہ دیکھیں، ہمارے پاس ہم نے لکھی تھی یہ اے ہے، اس میں میں نے پین سے نشانات بھی لگا دیے تاکہ آپ کو آسانی رہے جب ہم ریڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سلیٹ ہے یہ، تو سلیٹ میں کیونکہ پیپر یوں لگتا ہے تو یہ پیپر نیچے چلا جاتا ہے، اسی لیے ہمارے پاس رائٹ پہ 1 2 3 ہے، 4 5 6 یہ ہمارے لیفٹ پہ ہیں، لیکن پڑھتے ہوئے جو ہے یہ بالکل اپوزٹ ہے۔ ہمارے لیفٹ پہ 1 2 3 ہے اور 4 5 6 ہمارے رائٹ پر ہے، تو یہ چیز بھولیں گے۔ یہ اے ہے ہمارا 1، B12، C14، B145، E15، F124، G1245، H125، I24 اینڈ J245۔ اس طرح ہم نے یہ اے سے جے تک کے 10 کریکٹرز سیکھے تھے۔ تو یہ ہمارے ماشاءاللہ ہو گئے ہمارے 10 کریکٹرز۔ تو اب ہم جو ہے نیکسٹ سیکھیں گے اللہ نے چاہا تو۔ یہ دیکھیں میں یہ سلیٹ میں دوبارہ لگا رہا ہوں، اور میں اس کے بعد آپ کو کمپیوٹر پہ بھی ڈکسپری پہ بھی لکھ کے دکھاؤں گا بریل، اور جو ہے ابھی فی الحال میں اس کے اوپر آپ کو دکھاتا ہوں۔ میں نے یہ لگایا ہے، اس کی پنز اچھی طرح بند کر لیں۔ تو میں نے اس کے اوپر جو ہے یہ دیکھیں، اب میں لکھنے لگا ہوں۔ اب ہم سیکھنے لگے ہیں سیکنڈ لائن۔ سیکنڈ لائن کو کہتے ہیں ڈاٹ 3 کی لائن، اس کو ہم بولتے ہیں ڈاٹ 3 کی لائن۔ کیسے ڈاٹ 3 کی لائن؟ دیکھیں، اگر آپ کو لائن 1 اچھی طرح یاد ہو گئی، A to J 10 کریکٹرز کے نمبرز پکے یاد ہو گئے، تو یقین کریں آپ کو باقی کسی کے نمبر یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف رائٹ فارمولا یوز کریں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو فرسٹ لائن جس کو ہم ہوم رو کہتے ہیں، A to J، اس کے نمبر یاد نہیں ہے تو پھر آپ کو ہمیشہ پرابلم ہوتی رہے گی۔ تو اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو میں یہ دیکھیں لکھ رہا ہوں اے، میں نے لکھا اے کا 1 ڈالا، اور اس کے نیچے میں نے کیونکہ لائن کہلاتی ہے ڈاٹ 3 کی، تو میں نے نیچے ڈالا ڈاٹ 3، یہ بن گیا کے کا نمبر ہے 13۔ پھر میں نے بی لکھا، بی میں نے لکھا 1 2، بی کا نمبر 1 2 تھا، میں نے اس میں 3 ڈالا تو یہ بن گیا ایل۔ تو دیکھیں بریل کتنا آسان ہوتا ہے سیکھنا، لوگ پتہ نہیں کیوں اس میں پریشان ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں۔ رائٹ میتھڈ سے ٹیچر کو چاہیے کہ وہ سکھائے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا، آرام سے آ جائے گی۔ پھر میں لکھتا ہوں C14، اس میں 3 جب ڈال دیتا ہوں تو یہ بن جائے گا 134، تو یہ بن جائے گا M 134، یہ M کا نمبر ہے، M فار منکی۔ اب میں لکھ رہا ہوں سوری، اب میں لکھ رہا ہوں D145، اس میں نے ڈاٹ 3 ڈالا تو یہ بن گیا 1345، تو یہ بن گیا N فار نائجیریا۔ پھر میں نے ایک سیل پھر خالی چھوڑ دیا، اور میں نے اس کے اوپر لکھا E15، اور اس کے ساتھ میں نے ڈاٹ 3 ڈال دیا تو یہ بن گیا 135، یہ بن گیا O 135، O کا نمبر ہے 135۔ تو دیکھیں صرف ایک ڈاٹ 3 ڈالنے سے ہمیں یہ کریکٹر بھی پتہ چل گیا۔ پھر ہم نے لکھا F124، میں نے اس میں 3 ڈالا تو یہ بن گیا 1234، تو یہ ہو گیا P، سو P از 1234، تو ہمارے پاس P کا بھی نمبرز آ گئے۔ اب ہم لکھیں گے G1245، میں نے ڈالا ڈاٹ 3، یہ بن گیا 12345۔ تو دیکھیں کتنا ایزیلی ہم نے کیو سیکھ لیا ہے، یہ ہے نمبر کیو کا 12345۔ پھر میں لکھتا ہوں آر،
आर का नंबर है, सॉरी अब मैं लिखता हूँ H 1 2 5, इसमें मैं डॉट 3 डाल देता हूँ, तो ये नंबर बन गया 1 2 3 5, तो ये बन गया आर फॉर रैबिट। मैंने फिर लिखा I 2 4, तो 2 4 में मैंने डॉट 3 डाला, तो ये बन गया S 2 3 4। फिर लिखा मैंने J, तो J का नंबर है 2 4 5, सो मैंने इसके अंदर 3 ऐड कर दिया, 3 शामिल कर दिया, तो ये बन गया नंबर 2 3 4 5 T। तो देखिए हमें 10 नए करेक्टर सीख लिए हमने, जो कि हैं के से लेके टी तक सेकंड लाइन में। मैं एक दफा दिखा भी देता हूँ आपको, ये देखें के 1 3, L 1 2 3, M 1 3 4, N 1 3 4 5, O 1 3 5, T 1 2 3 4, Q 1 2 3 4 5, R 1 2 3 5, S 2 3 4, T 2 3 4 5। मैं आपको इस पे भी दिखा देता हूँ ताकि इस पे निशानात बने हुए हैं, ताकि आपको आसानी रहे, राइट। तो मैं आपको इसको भी दिखा देता हूँ, ये देखें के 1 3, ये मेरी तरफ है, तो ज़रा सा इस तरफ आ जाए ताकि मेरे अंदाज़ा हो सके, कैमरा इस तरफ होगा मेरे बिल्कुल बराबर में, राइट। ये के है, तो ये है 1 3, L 1 2 3, M 1 3 4, लेफ्ट पर है 1 3 और 4 राइट पे है, देखें N 1 3 4 5, अगेन लेफ्ट पे है 1 3 और 4 5 राइट पे है। पढ़ते हुए लिखते हुए इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, O 1 3 5, T 1 2 3 4, Q 1 2 3 4 5, R 1 2 3 4 1 2 3 5, S 2 3 4 एंड T 2 3 4 5। सो ये हमारी सेकेंड लाइन कंप्लीट हो गई। सो हमारे पास देखें कितना इजीली हमने सेकेंड लाइन सीखी। तो मैं आपको इसको कंप्यूटर पे भी लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको ब्रेल अच्छी तरह समझ आ जाए। तो मैं अभी कंप्यूटर पे लिखता हूँ इसको, तो मेरी जो है मेरे, अब आप फोकस सिर्फ उस पे रखें, सिर्फ इसके ऊपर, क्या नाम है, इसके ऊपर, ठीक है। मैं इस पे लिख रहा हूँ, देखें मैंने कंट्रोल एन किया, ओह सॉरी, I will call a new dialogue. Document type forward script radio button. Document type forward rail radio button. The necessary rail canceling on dash left bracket untitled rail document one time bracket. तो मैं इसके ऊपर अब मैं इसके ऊपर देखें लिख भी रहा हूँ अब, सही है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। ये मैंने लिखा के के लिए का नंबर था 1 3, तो के आ गया। के एल का है 1 2 3 स्पेस, तो ये फिर मैं लिख रहा हूँ M 1 3 4, तो ये ओके, मैंने लिखा N स्पेस, अच्छा वो साथ साथ क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन भी बोल रहा है तो इसीलिए वो बोलता है नॉट नॉट, क्योंकि एन अगर अकेला लिखा जाए तो उसके बाद नॉट भी होती है। तो कॉन्ट्रैक्शंस पे फिर कभी बात करेंगे, आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ उनके पर लेटर्स पे। तो एम एन एन लिखा हमने, अब हम लिखे हैं ओ का नंबर है 1 3 5, टी का नंबर है 1 2 3 4, क्यू स्पेस, तो क्यू का नंबर है 1 2 3 4 5, आर स्पेस, तो आर का नंबर है 1 2 3 5, एस एस का नंबर है 2 3 4 स्पेस, टी स्पेस, ओके। तो ये है हमारा हमारी सेकंड लाइन। तो जो है अब हम चलते हैं लाइन नंबर 3 की तरफ। तो मैं फिर एक दफ़ा स्लेट पर काम करता हूँ।
लेट्स सी, आपको बताऊं तो हमारे पास फिर मैंने ये स्लेट उठा ली है और मैं ये पेज लगा रहा हूँ। अच्छा, पेज लगाते हुए स्लेट में एक चीज का ख्याल रखिए, ये पिंस हैं, तो पिंस को आपने जो है पिंस के हिसाब से लगाना है, ओके, ताकि ये पेज ऊपर नीचे ना हो। ओके, तो हम इस पिन के हिसाब से लगा लेंगे। ये देखिए मैंने पिन का खास ख्याल रखा है ताकि एग्जैक्ट डॉट्स वहीं आए जहां हमने पहले डाले। ओके, तो हमें प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो मैं इसको सेट कर लूँ ज़रा सा। यस, सेट हो गई हमारा। मैं अपना स्टाइलस भी निकाल लूँ। दिस इज कॉल्ड स्टाइलस। सो मैंने इसकी लाइन फिर छोड़ी। अब हम सीखने लगे हैं लाइन नंबर 3। तो ए से जे तक हमने फर्स्ट लाइन में सीखा। सेकेंड लाइन में हमने के से लेके जो है हमने सीखा टी तक। अब हम सीखने लगे थर्ड लाइन। तो थर्ड लाइन में जो है हम इस लाइन को हम कहते हैं 3/6 की लाइन। 3/6 की लाइन, क्योंकि फर्स्ट लाइन में हम सिर्फ 3/6 का इजाफा करेंगे। तो मैं रिपीट करता हूँ, देखते हैं हम। देखें, अब मैंने लिखा है ए में है था 1, मैं इसमें अगर 3/6 डाल दूं तो ये बन जाएगा नेक्स्ट लेटर 136 यू। तो हमारा ये 11वां लेटर जो हमें आ गया। फिर मैंने लिखा बी 1 2, तो मैंने इसके अंदर 3/6 डाल दिया, 3 6, तो ये बन गया 1 2 3 6, तो ये हो गया वी। फिर मैंने जो है मैंने लिखा सी 1 4, मैंने इसमें लिख दिया 3/6। तो आप सोच रहे होंगे कि ये बनेगा डब्ल्यू, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बन जाता है एक्स। क्योंकि एक्चुअली ये जो 7 लाइन सिस्टम है ये फ्रेंच सिस्टम है और फ्रेंच में डब्ल्यू नहीं है। तो इस वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि लोग समझेंगे कि ये डब्ल्यू है, लेकिन डब्ल्यू नहीं है, ये एक्स है। 1 3 4 6, तो ये डब्ल्यू के बजाय एक्स है। डब्ल्यू कब आएगा? डब्ल्यू क्योंकि हमारा लाइन नंबर 4 में आएगा, तो लाइन नंबर 3 में हम डब्ल्यू को स्किप कर रहे हैं फॉर द टाइम। तो डी में लिखता हूँ 1 4 5, 1 4 5, इसके साथ में 3/6 डालता हूँ, तो ये बन गया 1 3 4 5 6, तो ये बन गया वाई। फिर मैंने सेल छोड़ा और मैंने लिखता हूँ E1 5, और मैं इसके साथ डाल देता हूँ 3 6, तो ये बन गया 1 3 5 6, और ये है हमारा Z, जिसको कुछ लोग Z भी बोलते हैं, बोथ ब्रिटिश एंड अमेरिकन। अब लोगों की अपनी मर्जी, इसको Z बोलें Z बोलें, आई हैव नो इश्यूज व्हाटसोएवर। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया F। F मैंने लिखा 1 2 4, इसके साथ मैंने 3/6 लगाया, तो ये नंबर बन गया 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, तो ये है एंड का साइन, AND एंड। असल में देखिए ब्रेल जो है ना वो बहुत, अभी आप देख रहे हैं मैं लिख रहा हूँ, इट्स वेरी वेरी एफर्ट इंटेंसिव, और ये टाइम टेकिंग भी है और स्पेस कंज्यूमिंग भी है। मतलब ये जगह भी ज़्यादा लेती है, ये एफर्ट्स भी इस पे ज़्यादा लगानी पड़ती है, जोर भी बहुत लगता है और टाइम भी बहुत लेती है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए ड्यूरिंग 1950s ये सोचा गया कि इसको क्यों ना कॉन्ट्रैक्शंस बना दिए जाए, साइंस बना दिए जाए। तो ये उन्होंने साइंस बना दी जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड सेम है। ये नहीं समझेगा कि किसी एक मुल्क में एक है, अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो ये सेम है। तो ये एंड जो है 1 2 3 4 6, ये एंड का कॉन्ट्रैक्शन, और ये बेसिक कॉन्ट्रैक्शंस में आता है। कॉन्ट्रैक्शंस दो किस्म के हैं, एक बेसिक जिसको हम ग्रेड 1 के कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और एक वो जो एडवांस्ड हैं वो ग्रेड 2 के कॉन्ट्रैक्शंस कहलाते हैं, या ग्रेड 2 के बाद ग्रेड 3 के भी, 2 और 3 के। तो वो हम कॉन्ट्रैक्शंस में मैंने कहा ना फिर कभी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि बेसिक कॉन्ट्रैक्शन 7 लाइन सिस्टम का हिस्सा है, तो बेसिक कॉन्ट्रैक्शंस पे हम अभी बात करेंगे। तो एंड का जो साइन है वो है 1 2 3
4 6। तो नॉर्मल राइटिंग जिसको हम साइटेड राइटिंग कहते हैं उसमें भी तो आपको पता है एंड के लिए मैं एम% डाल देते हैं, तो सेम यही समझिए कि ब्रेल में एंड के लिए हम साइन दे रहे हैं 1 2 3 4 6। मैंने फिर स्पेस छोड़ दिया, तो मैंने इसके बाद लिखा जी 1 2 4 5। इसके साथ अगर मैं 3 6 डाल दूं तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, ऑल 6 डॉट्स। ये लेट करेक्टर ऐसा है कि जिसमें तमाम के तमाम डॉट्स यूज हो रहे हैं, और ये है साइन या कॉन्ट्रैक्शन फॉर का, FOR, फॉर, जैसे मैं कहता हूँ ना इट्स फॉर मी, इट्स फॉर यू, ये फॉर का कॉन्ट्रैक्शन है। तो दिस इज द थिंग, ठीक है। अब हम करेंगे H, लिखेंगे 1 2 5। मैंने इसके साथ 3 6 डाल दिया, ये कॉन्ट्रैक्शन बन गया ऑफ का, OF, ऑफ का। सही है, इसका नंबर है 1 2 3 5 6। ये ऑफ का साइन है, ठीक है, या ऑफ का कॉन्ट्रैक्शन है, ताकि टाइम बचाया जाए। बजाय इसके कि मैं पूरा ऑफ लिखूं, मेरी मेहनत भी लगे, स्पेस भी ज़्यादा लगे, मैं शॉर्ट में लिखूं, तो वरना एवरेज अभी भी ब्रेल साइटेड राइटिंग के मुकाबले में तकरीबन हाफ पर है। मतलब अगर आप एक वर्ड लिखते हैं फॉर एग्जांपल 10 सेकंड्स में, तो मुझे उस वर्ड को लिखने में एटलीस्ट 20 to 25 सेकंड्स लग जाएंगे, तो इन कॉन्ट्रैक्शंस के बावजूद। तो इसलिए थोड़ी स्लो है ब्रेल, उसकी स्पीड साइटेड की हाफ है, तो ब्रेल की समझ लें डबल हो, राइट। तो ये ज़रा सा डिफरेंस है। फिर मैं लिखूंगा H के बाद आई का नंबर है 2 4। मैं इसमें 3 6 डाल देता हूँ, तो ये बन जाता है द का साइन, 2 3 4 6, द का साइन 2 3 4 6। तो अभी जब मैं लिखूंगा डक्सबरी पे तो उसको पढ़ेगा भी वो दाई, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन पढ़ता है। तो ये है 2 3 4 6, ठीक है। तो फिर मैं लिखूंगा जे, तो जे का नंबर है 2 4 5। मैंने इसमें लिख दिया 3 6, तो ये बन गया 2 3 4 5 6। ये हो गया विद का कॉन्ट्रैक्शन। तो देखें विद का नंबर है 2 3 4 5 6। कैसे आपने बामुश्किल फर्स्ट लेक्चर की भी मैं अगर टाइम को इसमें शामिल कर लूँ, तो विद इन 15-20 मिनट्स आपने ना सिर्फ अल्फ़ाबेट सीख लिए ब्रेल के, बल्कि कई एक कॉन्ट्रैक्शन भी सीख ली है। तो थर्ड लाइन में यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। तो दिस इज़ द थिंग, मैं अब आपको दिखाता भी हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट लाइन को हम छोड़ देते हैं, नीचे वाली लाइन पर आते हैं। इस तरफ आ जाओ ज़रा, कैमरा लेकर आप इस तरफ, ठीक है। यस, ये देखिए यू है, फिर ये 1 3 6, वी है 1 2 3 6, फिर एक्स है 1 3 4 6, वाई है, मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यू नहीं है थर्ड लाइन में, क्योंकि ये फ्रेंच सिस्टम है, 7 लाइन सिस्टम। फ्रेंच में डब्ल्यू नहीं होता, तो उन्होंने नहीं डब्ल्यू रखा है। तो ये एक्स है 1 3 4 6, वाई है 1 3 4 5 6, जेड है 1 3 5 6, एंड का कॉन्ट्रैक्शन है या साइन है 1 2 3 4 6। ये फॉर का साइन है 1 2 3 4 6। ये ऑफ का साइन है 1 2 3 5 6। और ये द का साइन है THE, द, या कुछ लोग इसको दी भी पढ़ते हैं, मर्जी आपकी। ये 2 3 4 6, और ये बन गया विद 2 3 4 5 6। मैं इस पे भी दिखा देता हूँ आपके पास आपको, ये देखें, ये इसमें मैंने पेन से साइन भी लगा दिए। यू का है 1 3 6, वी का है 1 2 3 6, एक्स का है 1 3 4 6, वाई का है 1 3 4 5 6, जेड या जी का है 1 3 5 6, एंड का नंबर है AND, एंड का है 1 3 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। फिर ये है 1 2 3 4 5 6 फॉर का, फॉर का नंबर है
1 2 3 4 5 6 4 FOR फॉर, ये फॉर का कॉन्ट्रेक्शन है या साइन आप कह लें इसको। ऑफ है, ऑफ का साइन है ये, या कॉन्ट्रेक्शन है, आप इसको कह सकते हैं। 1 2 3 5 6, और ये आ गया द का 2 3 4 6, और ये आ गया 2 3 4 5 6 विद का। विद का जो साइन है या कॉन्ट्रेक्शन है उसका नंबर है 2 3 4 5 6। तो ये हमारी थर्ड लाइन कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको कंप्यूटर पे भी करके बताता हूँ। मैं इसको कंप्यूटर पे आता हूँ। अब मैं लेट्स सी ये कंप्यूटर पे हमारे पास साइन है। यस, आई प्रेस एंटर सो आई कैन कम न्यू लाइन। ओके, सो हमारे पास है, फर्स्ट मैंने बताया था कि हमारे पास है यू का नंबर है 136। तो मैं प्रेस करता हूँ 13, यू स्पेस वी लिखता हूँ 1 2 3 6, 1 2 3 6 वी का नंबर है। फिर मैं लिखता हूँ वी के बाद, मैंने बताया था कि डब्ल्यू नहीं है लाइन नंबर 3 में, लाइन नंबर 4 में हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो ये मैं लिखता हूँ एक्स, एक्स है 1 3 4 6। फिर स्पेस दबाया, वाई का नंबर है 1 3 4 5 6, तो ये मैंने लिख दिया वाई। फिर स्पेस, फिर मैं लिखता हूँ जी या जेड, उसका नंबर है 1 3 5 6। फिर स्पेस, फिर मैंने दे दिया एंड का साइन, एंड का साइन है 1 2 3 4 6। फिर स्पेस, उसने बोला ए एन डी साइन, तो इसीलिए बोला उसने यस। अब मैं लिखता हूँ फॉर का साइन 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट 6 डॉट। तो बोला उसने एफ ओ आर साइन या फॉर बोला उसने, क्योंकि अब तो कॉन्ट्रेक्शन ही पड़ रहा है तो मसला नहीं है। तो मैं अब लिखता हूँ एच, और सॉरी ऑफ का साइन, तो ऑफ का नंबर है 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6। इसने बोला ऑफ, ओ एफ साइन ऑफ, ऑफ बोला भी है साथ, सही है। तो फिर मैं लिखता हूँ द का साइन, जो कि नंबर है उसका 2 3 4 6। तो उसने बोला टी एच ई साइन द, उसने दा पढ़ा है, आप दी पढ़े, आपकी मर्जी भाई। तो फिर मैं लिखता हूँ विद का साइन 2 3 4 5 6। तो डब्ल्यू आई टी एच साइन उसने बोला, मैं स्पेस दबाऊंगा तो विद बोलेगा। देखें तो हमारी थर्ड लाइन भी कंप्लीट हो गई। तो दिस इज द थिंग। अब हम चलते हैं लाइन नंबर 4 पे। यस, सो दिस इज द थिंग। अब हम फिर अपनी स्लेट में उठाता हूँ, और मेरी कोशिश है कि आज लाइन नंबर 5 कंप्लीट कर ली जाए। ओके, इसमें ताकि हमारे पास हमें मसला ना हो। लाइन नंबर 5, तो मैं ये देखिए, मैंने फिर आपको बताया था कि इसका आपने खास ख्याल रखना है। तो हम इसको लगा रहे हैं स्लेट में पिंस के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया था कि पिन का खास ख्याल रखना है। अक्सर लोगों की स्लेट्स की पिन टूटी हुई होती है, तो उनको पेपर बार बार लगाते हुए प्रॉब्लम आती है। जबकि अब देखें, मुझे पता है मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा था, थर्ड में लिखा था, और मुझे जो है कुछ नहीं करना, मुझे सिंपल जो है लाइन नंबर 5 में आ जाना है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, मैंने इसको देखें इसके हिसाब से बंद कर, तो ये मैं इसको रब कर लेता हूँ पेपर को, जरूरत नहीं है इस पेपर की फिलहाल। तो मैंने, तो ये मैं लाइन नंबर क्या, तो अब हम लाइन नंबर जो है सीखेंगे, लाइन नंबर 4। तो फिर वही बात मैंने कहा ना, होम रो आपको बिल्कुल सही तरह याद होनी चाहिए नंबर्स। तो मैं लिखता हूँ ए, और इसके अंदर मैं डॉट 6 डाल देता हूँ, डॉट 6। तो ये जो है 16 जो है ये कॉन्ट्रैक्शन है सी एच का, अगर किसी वर्ड में है, अगर किसी वर्ड में, जैसे मुझे लिखना है चर्च,
तो मैं लिखूंगा सी एच का कॉन्ट्रेक्शन डालूंगा, यू डालूंगा, आर लिखूंगा और फिर मैं सी एच का कॉन्ट्रेक्शन 1/6 डाल दूंगा, तो बन जाएगा 4। तो मेरे 1/6 जो है मुझे सी एच, मुझे 2 लेटर के बजाय मैं एक ही लेटर, एक ही साइन डाल देता हूँ, तो मेरे 2 लेटर्स बच जाते हैं। तो ये सी एच का, तो ये किसी वर्ड के शुरू में आए, मिडिल में आए, लास्ट में आए, तो इससे हमारा सी एच होती है। लेकिन अगर अकेला है, मतलब इससे पहले भी एक सेल खाली है और इसके बाद भी एक सेल खाली है, तो ये हो जाएगा चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड। अब मैं चलता हूँ एक सेल छोड़ के नेक्स्ट पे, तो मैं लिखता हूँ बी 1 2। अब मैं इसमें अगर .6 डाल दूँ, क्योंकि ये जो लाइन है ये कहलाती है .6 की लाइन, जैसे मैंने ए में .6 डाला, तो अब मैं इसमें भी .6 ही डालूंगा बी के साथ, तो ये बन जाएगी GH की लाइन। GH, तो GH में किसी वर्ड में आए, शुरू में आए, मिडिल में आए, लास्ट में आए, जैसे रफ, टफ, सही है, 8, EIGHT, 8, राइट। तो जहाँ भी GH आएगा, मेरे 2 लेटर्स के बजाय मैं एक ही लेटर से, एक ही साइन से काम चला लूंगा, तो मुझे 2 लेटर नहीं लिखने पड़े। 1 2 6, तो GH के बाद फिर मैं लिखता हूँ C 1 4, मैं इसमें .6 डाल देता हूँ, तो ये बन गया 1 4 6, तो ये बन गया H का कॉन्ट्रैक्शन, H SH। जैसे किसी वर्ड में आए, जैसे मैं लिखूं कैश, CA, तो मैं SH की जगह ये साइन डाल दूंगा, 1 4 6, तो ये बन जाएगा SH। हाँ, चाहे वर्ड के शुरू में आए, मिडिल में आए, लास्ट में आए, राइट, तो शेम में शुरू में आ जाएगा, राइट, बीच में मुझे कोई ऐसा वर्ड, कैशियर बीच में आ जाए, पर मर्जी है थी, राइट। लेकिन अगर ये अकेला है, इट इट कम्स अलोन, तो ये इसको जो है, ये कॉन्ट्रैक्शन है अकेला, मतलब इससे पहले भी सेल खाली है और बाद में भी सेल खाली है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन है शेल का, SHALL, शेल, तो ये शेल का कॉन्ट्रैक्शन। मैं फिर सेल खाली छोड़ूंगा और मैं अब लिखूंगा बी 1 1 4 5, तो 1 4 5 हो गया, मैंने .6 डाल दिया यहाँ, तो ये बन गया 1 4 5 6, ये कॉन्ट्रैक्शन है TH, TH। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है देन, तो मैं डालूंगा 1 4 5 6 AN, तो इस तरह बन जाएगा देन। चाहे किसी वर्ड के शुरू में आए, मिडिल में आए, लास्ट में आए, जैसे लिखूं फोर्थ, FOURTH, तो मैं लास्ट में भी डाल सकता हूँ इसको, मिडिल में कहीं आ जाए, फॉर एग्जाम्पल कैथरीन, तो TH बीच में भी आ सकता है क्या, तो सो दिस इज द थिंग। अच्छा, लेकिन अगर ये अकेला है, इट स्टैंड्स अलोन, अकेला है, तो फिर इससे मुराद हो जाती है दिस, THIS, दिस, मतलब इससे पहले भी सेल खाली छूटा और बाद में भी, तो किसी वर्ड का हिस्सा ना हो, तो इससे मुराद होती है दिस। अब मैं लिखता हूँ ई लिखा 1 5, मैंने इसमें 6 डाल दिया .6, तो ये बन गया 1 5 6, तो ये साइन है या कॉन्ट्रैक्शन है WH का। जैसे मैं जो लिखना है वॉट, तो मैं वॉट लिखूंगा 1 5 6 80, तो किसी वर्ड के शुरू में आए, बीच में आए या लास्ट में आए, तो आप यूज कर सकते हैं इसको 1 5 6 को। लेकिन अगर अकेला है, इफ इट कम्स अलोन, तो अकेला इससे पहले भी सेल खाली है, बाद में भी सेल खाली है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन है विच का, WHITCH, विच। तो नेक्स्ट हम आगे स्पेस हमने छोड़ा, फिर मैंने लिखा F1 2 5, मैंने इसमें .6 का इजाफा कर दिया, तो ये है 1 2 4 6, 1 2 4 6 जो बन गया वो ED का साइन। जैसे मुझे लिखना है एजुकेशन,
तो मैं ईडी का कॉन्ट्रेक्शन डाल के UCATION लिखूंगा, एजुकेशन। या आप जो है किसी वर्ड के लास्ट में भी हो सकता है, जैसे जंप, JUMP तो ईडी के लिए मैं ये 1246 डाल दूं। अकेला ये यूज नहीं होता, तो इसलिए अकेला ये नहीं आता। मैंने फिर सेल छोड़ दिया। अब मैंने लिख दिया G1245। ये इंग्लिश के सबसे ज्यादा शायद यूज होने वाले कॉन्ट्रेक्शन में से है, 1245, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रेक्शन। इसमें मैंने .6 डाल दिया तो ये बन गया 12456। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रेक्शन में से है। ये है ER का कॉन्ट्रेक्शन। ER से मुराद, जैसे मैंने ER का साइन है, जैसे मैं लिखूं टीचर, TEACH, तो ER के लिए मैं डाल दूं 12456। चाहे मैं शुरू में भी डाल सकता हूँ एरर, तो उसमें भी मैं डाल सकता हूँ शुरू में। मैं जो हूँ मिडल में भी कहीं आ सकता है, बेशुमार ऐसे वर्ड है, जैसे टर्म, TERM, तो मैं टी के बाद ER का कॉन्ट्रेक्शन। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट, और ये अकेले नहीं आता है, अकेले में इसका कोई कॉन्ट्रेक्शन नहीं है। तो हम इस पे एक सेल छोड़ेंगे। अब मैं लिखूंगा G के बाद H125। मैं इसमें .6 डाल देता हूँ, तो ये बन जाता है 1256। तो ये OU का कॉन्ट्रेक्शन बन गया हमारे पास, OU का साइन बन गया 1256। जैसे मैं लिखूं आवर, HOUR, कुछ लोग इसको आवर पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको आर पढ़ते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो आप इसको OU कहीं भी यूज हो सकता है, शुरू में भी यूज हो सकता है। आवर लिखूं, जैसे मैं लिखूं ROUR, तो मैं वहां पे भी यूज कर सकता हूँ। लास्ट में OU कहीं आता है या नहीं आता, आई एम नॉट श्योर। यस, तो जो है 12 कहीं वर्ड के किसी हिस्से में भी हो, ये 1256 आएगा। तो दिस इज द थिंग। लेकिन अगर ये अकेला आए तो फिर ये कॉन्ट्रैक्शन है आउट का, OUT, आउट। इससे पहले भी सेल खाली था और बाद में आउट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम लिख रहे हैं आई, H लिखा था तो अब हम लिख रहे हैं I, 24, इसमें .6 का इजाफा कर दूं तो ये बन जाएगा 246। तो 246 है OW का साइन। जैसे मैं लिख रहा हूं मुझे बॉल, BOWL, तो बॉल के लिए मैंने B के बाद ये डाल दिया 246 और फिर L लिख दिया। शुरू में भी हो सकता है आउल, 246 डाल दिया L। तो आखिर में भी हो सकता है बिल्कुल, बो, BOW। तो ये है। अच्छा, लेकिन कभी ये अकेले नहीं आता, तो अकेले का इसका कोई कॉन्सेप्ट। और अब हम आगे जे पे, जो कि आपको पता है फर्स्ट लाइन का लास्ट कैरेक्टर है, 245। मैं इसमें अगर 6 डाल दूं तो ये आ गया आपका फेवरेट W, जिसका हमें बड़ा इंतजार था। तो W का नंबर है 2456, 2456। तो ये हमारी 2456 का हो गया। तो हमारे पास ये W भी आ गया, हमने ये W भी सीख लिया। तो हमारे पास ये फोर्थ लाइन में मिलाकर हमने इसको सीख लिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक कराता हूँ। ये देखते हैं, CH या चाइल्ड का कॉन्ट्रैक्शन 16, ये GH का कॉन्ट्रैक्शन 126, ये SH या शेल का कॉन्ट्रैक्शन 146, ये जो है TH का कॉन्ट्रैक्शन 1456, या दिस का वट एवर, दिस अकेला आएगा तो दिस है, वर्ड में आया तो TH है। फिर मैंने 156 है, ये 156 साइन है या कॉन्ट्रैक्शन है WH का।
और मैंने एक बताया था कि अगर अकेला है तो विच का कॉन्ट्रैक्शन है ये है 1246 ईडी का कॉन्ट्रैक्शन है। किसी वर्ड में भी आए, शुरू, मिडिल या लास्ट, वेयर एवर। सो 12456 है, 12456 इसमें ई आर का कॉन्ट्रैक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वर्ड्स में ई आर आता है, वर्ड के शुरू में आए, मिडिल एंड वेयर एवर, लास्ट तो अकेले नहीं आता ये। तो ये है 1256, ये ओ यू का कॉन्ट्रैक्शन है। तो जो है किसी वर्ड के शुरू, मिडिल या लास्ट, लेकिन अकेला है तो आउट है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास 246 है। 246 जो है हमारे पास ओ डब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्शन है, ये ओ डब्ल्यू का साइन है। तो ये भी अकेला नहीं आता। फिर हमारे पास आ गया हमारा फेवरेट डब्ल्यू, 2456। लेकिन इसका मैं ये बात बताना आपको भूल गया कि अगर ये अकेला है तो फिर ये डब्ल्यू नहीं है, फिर ये विल है, WILL, विल, विल का कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हमने डब्ल्यू भी सीख लिया और विल भी। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था, लगता है डब्ल्यू की वजह से। मैं अब आपको इसको भी दिखा देता हूँ हमारे पास, जहाँ जिस पे थोड़े निशानात भी लगे हुए ताकि आप अच्छी तरह देख सकें। तो हमारे पास सॉरी, तो ये देखें, ये इस पे निशान भी लगे हैं। 16 CH का कॉन्ट्रैक्शन या चाइल्ड, 126 GH का कॉन्ट्रैक्शन, 146 SH या शेल का कॉन्ट्रैक्शन, 1456 TH या दिस का कॉन्ट्रैक्शन, 156 WH या विच का कॉन्ट्रैक्शन, 1246 ED या उसका ED का कॉन्ट्रैक्शन अकेले नहीं आता ये। 12456 ER का कॉन्ट्रैक्शन, ये भी अकेले नहीं आता। 1256 OU का कॉन्ट्रैक्शन, और मैंने कहा ना अकेला है तो आउट। 246 जो है OW का कॉन्ट्रैक्शन, और जो है अकेला नहीं आता ये। और ये आ गया W2456, तो 2456W, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब मैं आपको कंप्यूटर पे लिख के भी दिखा देता हूँ ताकि हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो जाए। अब मैं आपको इस पे दिखा रहा हूँ। यस, सो हियर आई गो। यस, तो मैं एंटर दबा, मैंने न्यू लाइन एक दफ़ा फिर कर ली ताकि आसानी रहे मुझे। तो ये मैंने लिखा CH का कॉन्ट्रैक्शन या चाइल्ड का 16, वेट अ मिनट, सो ये देखें मैं अब लिखने लगा हूँ। तो मैं 16 डालूंगा तो ये बोलेगा CH साइन, लेकिन अगर मैं स्पेस दूँ, चाइल्ड, इस स्पेस में डाल दिया चाइल्ड, क्योंकि मैंने कहा ना जब अकेला है तो ये चाइल्ड है सिमरा। ओके, तो मैं डालता हूँ GH साइन 126, इसने बोला GH साइन, मैं स्पेस डाल देता हूँ। GH ही इसने बोला क्योंकि इसका अकेले में कोई साइन नहीं है। तो अब मैं लिखता हूँ SH साइन 146, मैंने स्पेस दबा दिया। तो ये है शेल, SHALL शेल। तो मैं इसको लिखता हूँ, जो है हमारे पास है ये दिस का TH का साइन 1456, इसने बोला TH साइन, लेकिन मैं स्पेस दबाऊंगा तो बोलेगा दिस, दिस हो गया। तो दिस इज द डिफरेंट। अब मैं लिखता हूँ WH साइन 156, तो मैंने 156 लिखा। अब मैं स्पेस दबाऊंगा तो ये विच बोलेगा, क्योंकि अकेले में ये विच का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूँ ED साइन, तो ED साइन है 1246, तो मैंने अब स्पेस दबाया तो अकेले में उसने ED बोला, क्योंकि कोई वो नहीं है,
अकेले का इसका अलग से नहीं है। तो देयर फॉर तो इसने ये बोला। अब मैं लिख रहा हूँ ई आर का साइन 1 2 4 5 6 स्पेस, तो उसने ई आर ही बोल पढ़ा इसको। तो अब मैं जो हूँ वो यू का साइन लिखने लगा हूँ, स्पेस दबाया तो आउट, क्योंकि ये मैंने बताया था अकेला है तो ये आउट का कॉन्ट्रैक्शन है। सो दिस इज द थिंग। अब मैं लिखने लगा हूँ ओ डब्ल्यू का है 246, तो ये मैंने 246 दबा दिया, और अकेला आ ही पड़ा है उसने, क्योंकि अकेले में भी ये अकेला कोई अलग से वर्ड का नहीं है। तो अब मैं लिखने लगा हूँ आपका फेवरेट डब्ल्यू। डब्ल्यू का नंबर है 2456। उसने डब्ल्यू बोला, लेकिन स्पेस दबाता हूँ तो ये विल बोलेगा, क्योंकि अकेला है तो ये विल का कॉन्ट्रैक्शन है। तो मैं एंटर कर देता हूँ न्यू लाइन। तो अब हम सीखते हैं लाइन नंबर 5। तो मैं चाहता हूँ आप जो है इस 10 मिनट में 5 मिनट और देखें, एटलीस्ट बेसिक ब्रेल ये सभी तकरीबन आपको आ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो अब हम अपनी स्लेट लेते हैं, फिर स्लेट इस पे ये देखें पेपर लगाते हैं, सेम वही मेथड जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि पिन्स का ख्याल रखें और पिन बार बार यूज़ करेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा आपको। तो हम लाइन नंबर 5 सीखने जा रहे हैं। आप लाइन नंबर 5, यस। सो लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 5 को कहते हैं बिलो लाइन। बिलो लाइन से मुराद, देखिए ब्रेल डॉट्स पे जरा सा फोकस कर लें, इस तरफ आके जरा सा कैमरा फोकस कर। देखिए सेल के अंदर जो है ऊपर है 14, नीचे है 5 6 2 5, और सबसे नीचे है 3 6, मतलब 1 2 3 यहाँ हो गए राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ हो गए 4 5 6। तो इसको हम कहते हैं लोअर लाइन, क्योंकि इसमें हम करेंगे ये कि एक को खींच के थोड़ा नीचे ले आएंगे, मतलब हम फर्स्ट 1 4 को यूज नहीं करेंगे, पूरी लाइन में हम 1 4 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको नीचे खींच लेंगे। तो वही ए से लेके जे तक को कैसे करेंगे मैं अभी बताता हूँ आपको। जैसे मैंने जो है ये लिखा, ए का नंबर है 1, तो क्योंकि मैं 1 नहीं कर सकता तो मैं उसको नीचे खींच लाऊंगा, मैं करूंगा 2, ये हो गया 2। तो 2 जो है ये बेसिकली पंक्चुएशन है, कॉमा है, अगर किसी वर्ड के एंड में आए। जैसे मैंने बहुत सारे नाम लिखे, तो जो है मैंने कॉमा सारी चीज़ें लिखी, तो कॉमास हर वर्ड के एंड में जहाँ जहाँ कॉमा आ रहा है मैं वर्ड के एंड में 2 डालूंगा, तो ये है कॉमा। लेकिन अगर किसी वर्ड के मिडल में आए और या शुरू में आए तो इससे मुराद है ई ए, ये साइन है ई ए का। जैसे मैं लिखूँ बीट, बी ई ए टी बीट, तो मैं ई ए डाल दूँ बी के बाद .2। अच्छा, I personally don't recommend students to use it in the beginning, क्योंकि इन द बिगिनिंग अगर .2 डलाओ तो खासा कंफ्यूज होता है स्टूडेंट कि ये .2 है या .5 है, तो उसकी वजह से, और आपको होता है .5 से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन बनते हैं। तो मैं इसलिए स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करता कि इसको शुरू में यूज़ करें, .2 को मिडिल में कर लें, हाँ बीट या किसी वो एक लेटर के बाद कर लें, लेकिन बिल्कुल शुरू में ना यूज़ करें। तो दैट्स ये मेरी पर्सनल सजेशन है, ये ब्रेल का रूल नहीं है, आप शुरू में करें मिडिल में करें, हाँ एंड में करेंगे तो ये नहीं बनेगा बल्कि कॉमा बन जाएगा। जैसे मैं टी नहीं लिख सकता, टी ई ए टी, टी क्योंकि वो .2 जो है वो कॉमा को इंडिकेट करेगा, तो मैं एंड में एज अ कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं कर सकता डॉट। इसी तरह मैं अगर बी को नीचे खींच लूँ 1 2 की, बी का नंबर है 1 2, उसकी बजाय मैं कर दूँ उसको 2 3, तो मैंने एक स्टेप उसको नीचे ले आया। तो ये है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग साइन है। अगर तो ये किसी वर्ड के मिडिल में आए, मिडिल से मुराद सेकंड थर्ड कोई भी नंबर पे आए, लेकिन फर्स्ट लेटर के तौर पे ना आए और लास्ट लेटर के तौर पे नहीं आए, तो इससे मुराद है डबल बी। जैसे फॉर एग्जांपल बबल,
मैं बबल लिखूं तो उसके बीच में आ सकता है डबल बी के तौर पर, बी यू डबल बी एल ई, तो मैंने बी यू लिखा, फिर 2 3 डाला और एल ई डाल दिया, तो ये बन गया बबल। लेकिन अगर किसी वर्ड के ये शुरू में आ जाए तो इससे मुराद है बी ई बी, बी ई बी। जैसे मुझे लिखना है बिसाइड, तो मैं डालूंगा 2 3 SIDE, तो बिसाइड बन जाएगा। तो और इसका लेकिन तीसरा फंक्शन भी है, एक ही साइन में 3 3 फंक्शन है। अगर जो है 2 3 वर्ड के एंड में आए तो ये है कॉलन, कॉलन एज अ कॉलन यूज होता है। तो दिस इज द थिंग इन मॉडर्न UEB ब्रेव, ये कॉलन है। मैं एक सेल छोड़ देता हूँ और अब मैं लिख रहा हूँ, फिर अब मैं सी को नीचे खींच के लाऊंगा, 1 4 के बजाय मैं लिख दूंगा 2 5, 2 5। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो है अगर किसी वर्ड के शुरू में आए तो ये है कॉन, CON, कॉन। जैसे कॉन्ट्रैक्ट, कंफर्म, कंटिन्यू, बेशुमार वर्ड्स हैं CON से शुरू होते हैं। अगर ये लास्ट में आए तो फिर बन जाता है ये सेमीकॉलन, फिर बन जाता है ये सेमीकॉलन, लास्ट में आए तो सेमीकॉलन। अगर मिडिल में आए तो ये बन जाता है डबल सी, जैसे सक्सेस, सक्सेस में हम यूज करते हैं SU, डबल सी की जगह मैंने 2 5 डाल दिया, ESS डाल दिया आगे। ओके, फिर मैंने सेल छोड़ा, फिर अब मैंने डी को नीचे ले आया, मैंने खींच के डी को नीचे, डी का नंबर था 1 4 5, मैंने इसके बजाय कर दिया 2 5, मैं इसको एक स्टेप नीचे ले आया 2 5 6, 2 5 6। तो 2 5 6 जो है नंबर है, अगर किसी वर्ड के लास्ट में आए तो ये है फुल स्टॉप, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला। किसी इसमें आए तो फुल स्टॉप 2 5 6। और अगर मैं इसको जो हूँ किसी वर्ड के बीच में यूज करूं तो ये है डबल डी, जैसे मिडल, MI, डबल डी के लिए मैं 2 5 6 यूज कर लूंगा, LE। और अगर मैं किसी वर्ड के शुरू में यूज करूं तो इससे मुराद है डिस, DIS, डिस। तो जैसे डिस्टर्ब, डिसलोकेट, डिस अलाउड, तो उसके लिए यूज कर सकता हूँ। फिर मैं एक सेल खाली छोड़ता हूँ और अब मैं इसको डी के बाद ई को नीचे लेके आ रहा हूँ। ई का नंबर था 1 5, तो मैंने इसको एक स्टेप नीचे लाया, 2 6 कर दिया, तो 2 6 है EN का कॉन्ट्रैक्शन, और इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है EN, चाहे शुरू में आए, मिडिल में आए, लास्ट में आए। हाँ, अगर ये अकेला है, इफ इट कम्स अलोन, तो फिर इससे मुराद है इनफ। ओके, तो ये आपने याद रखना है, ENOUGH, इनफ। फिर मैंने एक सेल खाली छोड़ दिया और मैंने लिखा है एफ, तो एफ को मैं नीचे ले आया 2 3 5, तो एफ का नंबर था 1 2 4, मैंने उसको नीचे लाया 2 3 5 पे ले आया, तो ये है